Hello student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is algebraic expressions. तो जब भी हम algebraic expressions की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आता है जिसमें हम न्यूमेरिकल्स मीन्स नंबर्स और लिटरल्स मीन्स अल्फाबेट्स या फिर उनको वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं. तो इनके कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं जस्ट लाइक 2x + 3y. ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल्स भी होंगी, कॉन्स्टेंट्स होंगी और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगी. तो जब भी हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, algebraic expression. Okay, so let's see what we are having here. So the first thing we are having, that is introduction. We have learned about algebraic expressions, their addition, subtraction in this class. We shall learn about their multiplication, division, some important identities. But before we proceed to new things, we shall quickly remind some basic definition in terms of algebraic expressions. Okay, so चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं. There is algebraic expression. So algebraic expression होता क्या है उसको यहाँ पर देखते हैं. A number or combination of numbers including literals means variables connected by the symbols of mathematical operations like plus, minus, multiplication and division. So this is our algebraic expression. Example देखिए तो यहाँ पर हमें बोलेगा just like 3x, ये भी क्या है, algebraic expression है. 2x - 3y, ये भी क्या है, algebraic expression है. Then -3/5 x², ये भी क्या है, हमारा एक algebraic expression है. इसमें हमें जो numbers देखें just like 3, 2, -3, -3/5, इन सबको हम क्या बोलते हैं, constants. Okay. उसके बाद जो लिटरल्स थे जस्ट लाइक एक्स वाई जेड, इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स. ओके, सो अब उसके बाद आता है एक वर्ड टर्म. द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड टर्म, जो हम प्लस और माइनस से अलग अलग करते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो हम उसको अलग टर्म्स नहीं कंसिडर करेंगे, वो एक टर्म होगी. लेकिन प्लस माइनस होगा तो वो अलग टर्म में जाएगा. ओके, So next here we are having some basic definitions. तो यहाँ पर देखेंगे तो the first one is variable. A quantity which can take various numerical values is called variable. Just like here we are having x, y. These are the variables in the equation. Next we are having constant. तो constant में जो भी numerical value होती है, okay, तो उसकी बात करेंगे. That is a quantity which has a fixed numerical value is known as constant. Just like 2x + 3y + 5, यहाँ पर 2, 3, 5, ये क्या हो गए हमारे constants. Next is like term और unlike term. तो like terms की बात करें तो यहाँ पर आता है terms having same combination of literal. Just like variables are called like terms, just like 5x - 2y - x² + 7xy - y and x. जहाँ पे y ये हो गया और ये 2x हो गया, ये जो तीनों हमारे पास टर्म्स हैं, ये क्या हो गई हमारी लाइक टर्म्स. नेक्स्ट वी आर हैव अनलाइक टर्म्स. तो जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे अनलाइक टर्म्स. तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं. द टर्म हैविंग डिफरेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग काइंड्स ऑफ algebraic एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं algebraic एक्सप्रेशंस जो हम टर्म्स के बिहाफ पर अलग अलग देखते हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल. तो देखिए मोनोमियल्स 1. सो एन algebraic एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म. अगर आपको एक ही टर्म देखने के लिए मिलती है तो वो क्या है, हमारी मोनोमियल. देन वी आर हैविंग बाय मींस 2. सो एन algebraic एक्सप्रेशन विच हैव टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल. Then we are having trinomial. An algebraic expression which has 3 terms is called trinomial. Then we are having quadrinomial. An algebraic expression containing 4 terms is called quadrinomial. Okay, ये पता कैसे चलता है. अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं. देखिए यहाँ पे सिंगल टर्म है, यहाँ पर 5x + 2, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए हमारे पास. ट्राइनोमियल में 7xy + 4x -1, तो देखिए ये 3 टर्म हो गई. नाउ वी आर हैविंग 4 टर्म्स जस्ट लाइक 3abc, 8ab - bc - 6
AC. ये 4 terms हो गई, that is quadratic number. Next here we are having polynomial. An algebraic expression containing several terms is called polynomial. तो अब सब किस में आ जाएंगे, हमारे पॉलिनोमियल्स में आ जाएंगे. इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई भी नंबर्स कैसे भी आ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट कम टू आर डिग्री ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन. डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम एक्सपोनेंट या पावर. ओके, तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर. सो हियर वी आर हैविंग 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. तो जो वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, हमारे डिग्री. तो आप देखिए x की पावर 2, यहाँ पर 1, तो मैक्सिमम क्या हो गई 2, दैट इज आवर डिग्री. ओके, यहाँ पे देखिए 7x पावर 5, 3x इज टू पावर 2, 4x प्लस 1. तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 5. सो आवर डिग्री इज 5. क्लियर. चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल में यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1. सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल. तो हम यहाँ देखें 3x प्लस 7. तो यहाँ वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 1. ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पर बोलेगा पॉलिनोमियल की डिग्री 2, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ पर आगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. हमें पावर क्या होगी, 2, इसलिए. चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो देखिए यहाँ पर बस 2 टाइप्स से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं. एक होते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड, जिसमें आप हॉरिजॉन्टली इनको लिखेंगे और जो लाइक टर्म्स होंगी उनको सॉल्व करेंगे. ठीक है, जस्ट लाइक x प्लस 5x, तो कितना x कॉमन ले लेंगे तो कितना होंगे 6x, 6y माइनस 8y, 6 माइनस 8y, 4 माइनस 4z प्लस 3z माइनस 4 प्लस 3z. ओके, एक सेकंड मेथड होता है हमारे पास कॉलम मेथड, जस्ट लाइक x प्लस 6y माइनस 4z, 5x माइनस 8y प्लस 3z. ठीक है, तो आप इनको वर्टिकली ऐसे अरेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं. सो यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट हम वो फिनिश कर चुके हैं. अब आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 6.1. तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल. तो यहाँ पर देखते हैं जस्ट लाइक x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो ये पॉलिनोमियल है, गेस. अब देखिए इसकी जो पावर है वो रूट में है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकंड, state the degree of the following polynomials. Degree means maximum power. Okay, तो हम यहाँ से ले लेते हैं फोर्थ पार्ट. अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर आपको a रेज़ टू द पावर 4 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 4. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3. given below are polynomials of one variable. Okay, arrange them accordingly to the descending order of the degrees. तो डिग्रीज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अरेंज करना है, मतलब मैक्सिमम डिग्री सबसे पहले आएगा, देन उससे स्मॉलर, देन अगेन स्मॉलर. तो हम इसी सीक्वेंस में इसको अरेंज करेंगे. तो उसके लिए हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट. तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर होगा हमारे पास दिस इज 4x is to the power 5. Okay, ये done. Then we are having 8x is to the power 4. This is also done. Then we are having x is to the power 3 minus 8x to the power 2, then plus 7x plus 5. Okay, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर. अब ये जो हमें यहाँ पर लिखा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है कि आपको ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अरेंज करना होता है. ओके, highest to lowest degrees. Now we are having question number 4. Add the following by column method. Okay. So यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं this one. तो पहले हम क्या करते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, जस्ट लाइक 5x माइनस 8y प्लस 2z. ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज करेंगे. तो यहाँ पर आ गया -2x
Okay, then we are having minus 4y then plus 3z. Okay, then यहाँ पर आते हैं हम थर्ड देखते हैं, जस्ट लाइक माइनस एक्स माइनस जेड प्लस 6y. तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे जो लाइक टर्म्स है उनको मैं सब वर्टिकली अरेंज कर, है ना. लास्ट देखते हैं, जस्ट लाइक वी आर हैविंग 3x माइनस 2z माइनस 3y. तो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें सम करना है. चलिए तो यहाँ पे करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं. 3, अब देखिए प्लस 2z है प्लस माइनस 2z, ये तो कैंसिल आउट हो गया. 3 माइनस 1, सो वी आर हैविंग 2z. ओके, साइन किसका आएगा, जो बिगर है, हमने आप प्लस यूज कर ली. सो देखिए ये तीनों माइनस में, तो इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं. 8 प्लस 4 12, 13 14 15. 15 में से 6 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 9y. ठीक है, तो प्लस माइनस साइन किसका आएगा, माइनस. सो यहाँ पर आते हैं हम 5 और 3 8, 8 माइनस 3 करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 5. So we are having 5x. So our answer is 5x minus 9y plus 2z. Okay. So next on to question number 5. Add the following by horizontal method. तो चलिए यहाँ पे horizontal method यूज करेंगे इस बार, और हम ले लेते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट. So here we are having this one and next. Okay. तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करने वाले थे, horizontally अरेंज करेंगे. पहले just like 6p plus 4q minus r plus 3, then plus 2r minus 5p minus 6. फिर साथ प्लस करेंगे 11q minus 7p plus 2r minus 1, then plus 2q minus 3r plus 4. ओके, तो चलिए अब यहाँ से जो लाइक टर्म्स है वो देख लेते हैं. पहले हम पिक करते हैं p 1 2 3, यहाँ पर तो नहीं है, तो चलिए पहले इनको लिख लेते हैं. 6p, देन यहाँ पर कितना था, दैट इज माइनस 7p, सॉरी ये रह गया माइनस 5p. ओके, देन वी आर हैविंग q पार्ट 4q, दिस इज 11q और यहाँ पर 2q. तो चलिए इनको लिख लेते हैं. 4q प्लस 11q देन प्लस 2q. चलिए उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं. अब आ जाता हम आर पर. तो देखिए यहाँ पर ही आर हो गया एक, यहाँ पे सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. तो चलिए यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं. सबसे पहले ये रहा माइनस आर, देन वी आर हैविंग प्लस 2r, देन वी आर हैविंग अगेन प्लस 2r, and last here we are in minus 3r. Okay, so now we are having the last, that is our constant terms. So चलिए यहाँ से देख लेते हैं. हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे बचा 3. ओके, देन उसके बाद माइनस 6, देन वी आर हैविंग माइनस 1, देन वी आर हैविंग प्लस 4. ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं. दिस इज 7 माइनस माइनस प्लस. ठीक है, थोड़ा साइड कर लेते हैं. चलिए 7 प्लस 5 माइनस प्लस, दैट इज 12 माइनस 6, दैट इज 6p. और हमारा साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, दैट वन इज द बिगर वन. ओके, देन 11 प्लस 4 15 प्लस 2, दैट इज 17q. ओके, देन वी आर हैविंग 2 plus 2 4r, 4 minus 4, that is 0r.
then plus this is 6 minus minus 7, 7 minus 7 कितना होता है 0. ओके चलिए इतना रहने के बाद अब हमारे पास क्या बचा से माइनस 6p प्लस 17q. दैट इज योर आंसर. ओके तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. क्लियर. So next come to question number 6. Subtract the following by column method and then we are having horizontal method. तो चलिए करते हैं. यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट. तो अगर हम कॉलम मेथड यूज करने वाले हैं तो जो हमारा सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सबसे पहले लिखेंगे देन उसके बाद इसको लिखेंगे. ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस लाइक वी आर हैविंग 4x is to the power 4 minus 2y cube minus 6y square minus y plus 5. ओके उसके बाद हम इसको अरेंज करेंगे बाय लाइक टर्म्स का ध्यान रखना आप लोग. अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे. ठीक है तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस देन माइनस देन अगेन माइनस देन माइनस. ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं. 5 minus 1 is 4. ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड दिस इज माइनस 2y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस दिस इज माइनस 8y स्क्वायर. ओके तो यहाँ पे करेंगे हम 3 minus 2 दैट इज प्लस y फॉर यहाँ पे क्यूब लिखना रह गया होगा. हाँ so plus minus minus so this is plus y cube and this is minus x is to the power 4. ओके इस टाइप से हम इसको सॉल्व करें. Now on to next question, question number 7. Subtract the following by horizontal method. तो चलिए यहाँ से ले लेते हम थर्ड पार्ट. So here we are having from. तो पहले हमें ये लिखना पड़ेगा देन उसके बाद इसको लिखेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट. ओके सो दिस इज 9x स्क्वायर minus 5x plus 4. Okay, this is minus, this is 4x square plus 2x minus 1. Okay, इतना करने के बाद फिर से अब हमें यहाँ पर साइन चेंज करनी पड़ेगी. तो चलिए देखते हैं. So this is 9x square minus 5x plus 4 plus minus minus that is 4x square minus plus minus that is 2x minus minus plus 1. Okay. So here we have 9x square minus 4x square. This is 5x square minus 5x minus 2x. This is minus 7x. 4 plus 1. This is 5. So ये हो गया हमारा आंसर. ओके चलो उसके बाद आगे चलते हैं. तो देखिए अभी तक हमने सारे नॉर्मल क्वेश्चंस करे हैं. अब यहाँ पे थोड़े वर्ड कॉन्ट टाइप क्वेश्चंस है तो उनको देखते हैं. सो 8 9 10 सेम है तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं 9th पार्ट. So यहाँ पे देखेंगे that is two adjacent sides of a rectangle are this and this. Find the perimeter. तो देखिए लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है. ठीक है क्योंकि रेक्टेंगल की जो एडजेसेंट साइड्स होती है या तो एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है. वो सब पेरीमीटर निकाला. पेरीमीटर फॉर्मूला हमें पता है तो चलिए यहाँ पर यूज करते हैं. दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल.
Perimeter of rectangle is just like twice of length plus breadth. देखिए ट्वाइस तो 2 ही रहेगा, लेंथ कितना है बस जस्ट लाइक 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर. ओके देन प्लस ब्रेथ हो गया हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई. सो 5x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया हमारा जस्ट लाइक 6x स्क्वायर. दिस इज माइनस 3 वाई स्क्वायर देन प्लस 2 एक्स वाई. सो हियर वी आर हैविंग 2. तो अब तो देखिए कोई भी लाइक टर्म यहाँ पर नहीं है, तो अब आपको सीधा इसको ब्रैकेट को ओपन करके और सॉल्व करना पड़ेगा. जैसे 2 इंटू 6 12x स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस 6y स्क्वायर 2 टू द 4 xy. So this is our answer. ओके चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट है उनके आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनको आप एक्सपोनेंट्स की तरह यूज करेंगे. और बात आती है साइन की. तो देखिए साइन में हम क्या करेंगे, अगर आप प्लस प्लस मल्टीप्लाई करते हैं देन यू आर हैविंग प्लस, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस. तो ये साइन आपको ध्यान रखना है. दूसरी चीज, जब भी हम वेरिएबल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल्स सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. अगर ब्रैकेट के बाहर अंदर पावर है तो हम पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे. और अगर बेस सेम है, ओके पावर्स डिफरेंट है और आप उनको क्या करना चाहते हैं, डिवाइड, कम होंगी पावर क्या कर देंगे, माइनस. ओके सो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन है हमारे पास. जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल. जस्ट लाइक 2x पावर 4 बाय पावर 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर बाय क्यूब, इन सब के मल्टीप्लाई करेंगे. ओके तो सिंगल टर्म के सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई करना. देन वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो चले अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 2 मेथड्स है. एक एक हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेथड, इसमें हम इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे. हमारे पास वर्टिकल मेथड है और कॉलम मेथड, इसमें हम इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी होता है. तो चलिए अगर हमसे कुछ नहीं बोला जाएगा तो हम हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करेंगे. ओके सो हियर वी आर हैविंग अनदर एक्सरसाइज दैट इज 6.2. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय कॉलम मेथड. ओके तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन, 7th पार्ट. सो यहाँ पर आता है पास 3m माइनस 4n. ओके तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जस्ट लाइक 2m माइनस 3n. ओके तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे. अब देखिए पहले हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं इन सब से एंड देन इस 2m की करेंगे. सो 4 3 is 12 n into n, that is n square, minus minus will become plus. Okay now we have to multiply this 3n and to this 3m. So 3 3s are 9 m n, plus minus is minus. अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अब इस m की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर, दैट इज 2 इंटू 4, दैट इज 8 m इंटू n m n. देन वी आर हैविंग 3m इंटू 2m, 3 टू ज़ 6. तो ये तो n स्क्वायर है तो उसका थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं. सो दिस इज 3 टू ज़ 6 m स्क्वायर. सो अब इनको ऐड कर लेंगे हम. So this is 9 minus 9 plus 8. This is minus mn. This is plus 12n square plus 6m square. ओके तो ये हो गया हमारा आंसर. ओके तो ये था हमारा वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन और कॉलम मेथड. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय हॉरिजॉन्टल मेथड. तो हम यहाँ से ले लेते हैं 8th पार्ट.
सो यहाँ पर आता है पास जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो है एक्स इज टू द पावर 2 माइनस 5x प्लस 8। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, यहाँ पर जो प्लस 2 इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो चलिए ये हो गया एक्स स्क्वायर दिस एक्स इज टू द पावर 4 माइनस प्लस माइनस दैट इज 5 एक्स इज टू द पावर 3 प्लस दिस इज 8x स्क्वायर। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस दिस इज 2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 टू ज़ 10 x एंड देन 8 टू ज़ 16। ओके चलिए, तो अब जो लाइक टर्म्स होंगे उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो अनलाइक टर्म्स होंगे उनको एज इट इज छोड़ देंगे। सो हियर वी आर हैविंग एक्स इज टू द पावर 4 माइनस 5 एक्स इज टू द पावर 3। ये हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस 8 प्लस 2 10x स्क्वायर, देन यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10x प्लस 16। सो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है सॉल्व। ओके, तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करके मल्टीप्लाई करें। सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग सम आइडेंटिटीज। ओके, तो आइडेंटिटीज देखते हैं यहाँ पर, और हमें यहाँ पर उनके वैल्यूज भी निकालनी पड़ सकती हैं। सो बहुत इजी आइडेंटिटीज हैं, जस्ट लाइक हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी आती है यहाँ पर, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आगे पीछे हम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। Next here we are in second identity, that is a minus b whole square, that is a square minus 2ab plus b square. Then we are having third identity a plus b a minus, that is a square minus b square. Okay, और बस अभी तो हमारे पास यही आइडेंटिटीज हैं, अब इन्हीं को सॉल्व करेंगे। So here we are having our exercise 6.3. हम यहाँ पर देखते हैं we have to just multiply them. Okay, so यहाँ से हम पिक कर लेते हैं 7 पार्ट। ओके, देखिए दिस इज 3x प्लस 5y 3x माइनस 5y, ये a प्लस बी a माइनस बी वाई आइडेंटिटी हो गई, जस्ट लाइक a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी को हम कैसे यूज करते हैं, जस्ट लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 3x a हो गया हमारा, यहाँ पे 3x होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिखा है 5y होल स्क्वायर। तो दिस इज 3 3 is 9, दिस इज x स्क्वायर माइनस 5 5 is 25 y स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। तो आप यहाँ पर आइडेंटिटीज लगाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट पार्ट। तो देखिए यहाँ पर इसको हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा होगा। तो इसकी आइडेंटिटी क्या आती है हमारे पास, जस्ट लाइक a प्लस b एंड a माइनस b। ओके, तो हमें ये वाला पार्ट यहाँ पर गिवन है तो हम इसको यूज करेंगे। तो एक बार में बस क्या करना है प्लस, और एक बार हमें क्या करना है माइनस। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल आउट हो गया। 3 प्लस 3 दैट इज 6x। ओके, यहाँ पर देखेंगे
तो अब हम यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ेगा, जस्ट लाइक 3x + 5, then -3x, minus will become +5. Okay, so this is +3x, this is -3x, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10. So here we are having 6x and this is 10. So this is 60x. So this is our answer. Clear? चल उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 4. ओके होंगे. सो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5. तो यहाँ पर हमें वैल्यूज निकालते हैं, तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट ले लेते हैं. ओके सो देखिए जैसे यहाँ पर बोला गया इफ 2x - 1/2x = 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो चलिए अब देखिए ये अगर हम इसका स्क्वायर करें तो कुछ इस टाइप से ही आएगा. तो चलिए तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि प्लस में है और स्क्वायर में. तो मैं क्या करने वाला हूँ 2x - 1/2x इक्वल्स टू यहाँ पे गिवन है 30. मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करने वाला हूँ ऑन बोथ साइड. ओके सो चलिए आप स्क्वायर करिए तो a - b होल स्क्वायर यूज करना पड़ेगा. तो a - b होल स्क्वायर क्या था, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab. तो ये आइडेंटिटी थी हमारी. यहाँ पर देखें a स्क्वायर क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक 2x होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/2x होल स्क्वायर दैट इज -2a एंड दिस इज b. और यहाँ में 13 का स्क्वायर करेंगे, दिस इज 169. क्लियर. चलिए उसके बाद यहाँ पर चलते हैं. दिस इज 2x होल स्क्वायर, दिस इज 2 to the 4, दिस इज x स्क्वायर प्लस यहाँ पे करेंगे तो दिस इज 1/4 x स्क्वायर. ठीक है तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचा -2 एंड हियर वी आर हैविंग 169. ये माइनस है, राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस. सो वी आर हैविंग 169 + 2 equals to 171. ओके ये वैल्यू हो गई हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर. ओके सो हमने यहाँ पे आईडेंटिटी इसका यूज करना भी देख लिया और अब आगे चलते हैं. सो हियर वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो देखिए यहाँ पे हमने मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करा है, तो बस हमें यहाँ पर एक्सपोनेंशियल गेम्स अच्छे से खेलने आने चाहिए. ओके तो आप कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे एंड वेरिएबल को वेरिएबल से. ओके तो चलिए. ओके तो यहाँ पर डिवीजन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो बस आप एक छोटी सी बात याद रखना, हमारी जो एक डिवीजन प्रॉपर्टी थी दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये हमें चेकिंग के टाइम पर यूज करना पड़ेगा. ठीक है जिसको हम डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं. ठीक है तो बस चलिए यहाँ पर देखते हैं. और सो here we are having an exercise that is 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड. तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट. चलिए तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे. दिस इज 5m³ - 30m² + 45m. और हमें किससे डिवाइड करना है 5m से. तो चलिए सारी टर्म्स को 5m से डिवाइड करते हैं. लाइक 5m, दिस इज 5m, दिस इज 5m. ओके तो यहाँ से m से इसको कैंसिल आउट करेंगे. दिस इज 2, 5 से 5 कैंसिल आउट. सो 5 6 30, m से करेंगे यहाँ पे पावर बचेगा 1 एंड यहाँ से करेंगे तो दिस इज 9 एंड m से m कैंसिल आउट. सो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, दैट इज m² माइनस यहाँ पे क्या बचा 6 m raised to the power 1
and here we are having 9. So this is our answer. Okay. So next is question number 4. Sorry, question number 2. Divide and write the quotient and remainder. Okay. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम ही है, बस यहाँ पर हमें वेरीफाई भी करना है। तो हम यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं जो थोड़ा सा हमारे लिए कंफर्टेबल भी रहेगा और फिर उसको वेरीफाई भी कर देंगे, है ना। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। So here we are having 2x plus 3 divided by, यहाँ पर आ गया 2x raised to the power 3 plus x square minus 5x. So this is minus 5x minus 2. उसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो देखिए जो सिंपल डिवीजन में रूल था हमें वही अप्लाई करना है कि हम इस नंबर से एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट होगा वो या तो जो हम डिवाइड करें उसके इक्वल आए या उससे थोड़ा सा छोटा है। तो देखिए दिस इज 2x, ये 2x पावर 3, तो 2 1 जा 2 आ गया। अब x से इसे मल्टीप्लाई करो जो x की पावर 3 हो जाए, दैट इज x रेज टू पावर 2, पे हो गया x रेज टू द पावर 3। ओके, अब इसी नंबर की हम सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक 3 इंटू एक्स स्क्वायर, सो दिस इज 3x स्क्वायर। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करना है, साइन चेंज, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, सो सीधे कैंसिल आउट, फिर हो गया 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं, माइनस 5x। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, है ना। तो अब आगे चलते हैं। अब अगेन 2x की मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करनी है जो माइनस 2x स्क्वायर आ जाए। सो दिस इज प्लस 2, दिस इज माइनस 2, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को क्या बनाना है x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा x, तो माइनस एक्स इंटू 2x दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, दिस इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x। ओके, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर करेंगे, फिर से हमें साइन चेंज करने होंगे, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 दैट इज 2। साइन किसका आएगा, जो बिगर होगा, बिगर कौन है, माइनस। यहाँ पे करेंगे, सो दिस इज अगेन माइनस 2। अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक आ जाएगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज माइनस 2x एंड माइनस इंटू 3 दैट इज माइनस 3। अब फिर से साइन चेंज में, दिस इज प्लस एंड दिस इज प्लस, तो से कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचे 3 माइनस 2 इज 1। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो कितना है, 1। अब क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। चलिए तो उसको देख लेते हैं। ओके, तो डिवाइड तो हमने कर लिया, अब चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के लिए मैं डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने वाला हूँ। तो जो क्या थी हमारे पास, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो चल यहाँ पे देखिए डिविडेंड तो हमारे पास यही आना चाहिए, तो एक्स एस पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे डिवाइजर है हमारे पास 2x प्लस 3, क्वोशिएंट अभी हमने निकाला था, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और रिमाइंडर आया था हमारे पास आई थिंक 1 और माइनस 1, फिर वो चेक कर लेते हैं, दिस इज 1। सो हियर वी आर इन रिमाइंडर बात, तो अभी हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो चलिए रफ मल्टीप्लाई करते हैं।
दिस इज 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और यहाँ पर आता प्लस 3 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1. So this is 2x to the power 3 minus 2x square minus 2x. This is plus 3x square minus 3x minus 3. चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे. ये तो देखिए एज इट इज रहेगा क्योंकि पावर 3 तो किसी की नहीं है. यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर. दिस इज एक्स माइनस 5x एंड माइनस 3. तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया. चलिए हमने इनका प्रोडक्ट करा तो हमारे पास आ गया 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3. अब इसे हमें क्या ऐड करना है, बस 1. तो चलिए इसको साइड में कर देते हैं. ओके तो माइनस 3 प्लस 1 तो करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 2. तो देखिए ये दोनों हमारे सेम आ गए, इसका मतलब हमने डिवीजन सही करा था. ओके सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. वेरीफाई. ओके चल तो ये हो गया. अब उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर. तो यहाँ पे बोला है विदाउट एनी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द वैल्यू. तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम. उसको देखते हैं इस पार्ट को. तो यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज करनी है. हालांकि हम ये वाली बहुत बार कर चुके हैं, तो इस बार इसको ले लेता. सो दिस इज 97 स्क्वायर लिखा हुआ है. तो क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे. जस्ट लाइक 100 माइनस 3 97 आएगा होल स्क्वायर. तो ये क्या हो गया हमारा ए, क्या हो गया डी. तो आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो चलिए अब सॉल्व करते हैं. सो दिस इज 100 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, देन वी आर हैविंग माइनस 2. ए क्या हो गया हमारा 100, बी पे हो गया हमारा 3. तो चलिए यहाँ पर आते हैं. दैट इज 100, दैट इज 1 2 3 4. दिस इज 9, दिस इज 3 2 6 एंड डबल सी. ओके तो यहाँ पर करेंगे. सो यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक 9409. सो दिस इज आवर आंसर. ओके तो अब आप बोलोगे सर ये तो मल्टीप्लाई ज़्यादा इजीली हो जाता, हो भी सकता है. ओके तो चलिए आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली. नाउ सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन ऑल द बेस्ट.